is the introduction session. The first, all of you tell in which class you are reading and what's your name. बताइए. मुँह से निकाल के बोलो. थोड़ा सा निकाल तो फिर बोलो. 8th class. हाँ. What do you mean? Name in which school you are reading? Sanjit Singh Rana, CMS. CMS Sanchit Singh Rana in class 8. Okay. Next. My name is Krishna Kaveri. I am in class 8. I am studying in LPS. The same school. LPS. LPS. What the full form? Lucknow Public School. Lucknow Public School. Okay. You are in class 8? Yes. Right. My name is Aditi Singh. जो वैसा दिखाना. हाँ, उनका इंट्रोडक्शन सेशन. And my name is Aditi Singh. I am studying in 8th class. LPS. LPS. Lucknow Public School. LPS in class 8. Yours? My name is Akansha. I am studying in class 8 CMS. Class 8? CMS. 9th. You are in class 9th, I think? Ma'am, 8. Okay. Then CMC, what the full form? City Montessori School. City Montessori School. Okay. Ma'am, You? my name is Ayush Kumar. I study in class 6B. I am in CMS. Class 6th B. Okay. Where is Rakshada? Rakshada's daughter? दिखाई नहीं दिया कोई देखा और आवाज भी लगाई कुछ सुनाया नहीं. अच्छा. You are in which class? I'm a BTech student. I'm doing BTech first semester from Ajay Kumar Engineering College, Nazir. अच्छा. You are doing your BTech. In which subject? Electrical and electronics. Electrical and electronics. You are somebody's mother. Okay. So the thing is that this time I have called all of you क्योंकि ये जो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड. ओके. सो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड इसके लिए चेयर ना उसके लिए. So during this lockdown period, I have made a project on my rooftop, right? So that project I want to show to all the students. Basically, I myself am a teacher, as you know very well that I am a science teacher from KV, Kendriya Vidyalaya. For my training also I came to KV Aliganj, 21 days training. So I have taken my retirement. I am taking all these 10th, 11th, 12th classes, and after 30 years I took my retirement. So just in lockdown period I was thinking what to do, because you cannot call anybody. There is restriction, isn't it? So that's why I thought and I made something. Now come to this side. So you are in class 10th. In which school? Balikul Girls Academy, Deligala. Balnikul School. Yes. Okay. It is co-ed? Yes. It is co-ed. Sit down. So I'll show you one project that I have made mainly for the students, and you can make it as the model. It is a small project, and this project I am making in a bigger way in my farmhouse also. So this is for all of you. It is a new thing. In class 8 there is a topic, agricultural production. Am I right? There is some, what is the topic? Agriculture. So in that one you must have seen about that drift irrigation, that so many things are there, and there are to produce more food and it should be sustainable. There should not be any pollution. There should be conservation of soil and water. All these things we have to do, and we have to at the same time we have to increase the production also. So based on this new agricultural technology, I have made this project. So in this project, there is no loss of water. It is completely organic. There is no insecticides, no pesticides, right? And at the same time, you can grow the fish and the vegetables, organic vegetables, right? So I think that we must go and we must see it. Otherwise, it will be late. Okay? Come. Okay, welcome to all of you that you all have come for this to see this project. और
थैंक यू मैम। आप आपके बच्चों को लेकर आप कौन से स्कूल में हैं? जी मैं LPS से आई हूँ और मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ। दे वांट टू सी दैट। आप मैडम? सिटी मोंटेसरी स्कूल से। सो थैंक यू टू बोथ ऑफ यू दैट यू हैव कम विथ योर चिल्ड्रन। तो आज के जो ये मैं दिखाने जा रही हूँ इसका है दिस इज योर मिनी प्रोजेक्ट ऑन एक्वापोनिक। दिस इज अ मिनी प्रोजेक्ट ऑफ एक्वापोनिक। मेनली इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये जो लॉकडाउन पीरियड में ये वाला प्रोजेक्ट बनाया गया है। सो आई मेड दिस प्रोजेक्ट टेकिंग 7 to 8 months ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये जो बच्चे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे 3-4 स्कूल से इधर में बच्चे आए हैं। यू आर फ्रॉम विच स्कूल? बाल निकुंज गर्ल्स अकेडमी। बाल निकुंज गर्ल्स अकेडमी एंड यू आर फ्रॉम केवी। KB Aligarh. He is from KV Aligarh and another 2 public schools they have come here and all of them they are in the campus only. तो ये जो प्रोजेक्ट है एक्वापोनिक्स बच्चे, ये प्रोजेक्ट में आप ये जो प्रोजेक्ट है इसको हमने अपने का बालकनी में किए हैं इन ए स्मॉल स्केल। तो इसमें हम 2 चीज़ ग्रो करते हैं इन एक्वापोनिक। क्या क्या ग्रो करते हैं? व्हाट इज रिटन देयर? Fish tank. So in the fish tank, fish is there and growing fish. It is called aquaculture. And these all are green vegetables. Are you observing? Green vegetables. तो इसको बोलते हैं, ये सिस्टम है हाइड्रोपोनिक्स, growing vegetables without soil. So this is hydroponic and that is aquaponic, aquaculture, growing fish. तो फिश और वेजिटेबल जब हम एक साथ ग्रो करते हैं, राइट, एक्वाकल्चर प्लस हाइड्रोपोनिक, सो कंबाइनिंगली इट इज कॉल्ड एक्वापोनिक। तो आज के ये जो हमारे जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आप देखिए विल स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। इस जगह में देखो, ये जो फिश टैंक है इसमें फिश है, फिशेस है इसमें। तो इस फिशेस को एक छोटा जो बैक्टीरिया है उसमें, ये जो फिशेस है इसमें ये टैंक में है, ठीक है। तो इस टैंक में जो पानी आता है, देयर इज ए बिग टैंक डाउन, नीचे एक बड़ा सा टैंक है, दैट टैंक इज कॉल्ड सम्प। तो उस सम्प में हम पहले पानी भरते हैं, ठीक है। फर्स्ट यू आर स्टोरिंग वाटर इन दैट सम्प फ्रॉम टैंक। तो सम्प इज द रिजर्वर ऑफ वाटर, राइट। तो उसमें से पानी इस फिश टैंक को आता है, वाटर इज कमिंग टू दिस फिश टैंक। इज इट क्लियर? तो ये फिश टैंक में जो पानी आता है कैसा आएगा? वी हैव फिटेड द मोटर्स, एक छोटा सा मोटर लगा है, बाय दैट वाटर इज कमिंग। व्हाट इज दिस वर्क? इसमें हम फिश छोड़े हैं, इसमें से ऑक्सीजन दिया जाता है, इसमें ऑक्सीजन दिया जाता है फिश को, अदरवाइज द फिशेस दे विल डाई, है ना। तो इसमें ऑक्सीजन दिया जाता है और फिश को ये जो उसका फीड है ये वो खाते हैं। दिस इज कॉल्ड द फ्लोटिंग फीड। ये देख रहे हो, फ्लोटिंग फीड है। हाँ मैम, जैसे मैम इसमें पानी आता है उसको हम सम्प कहते हैं। सम्प होता है रिजर्वर, जो एक बड़ा सा टंकी है ना, उसमें से पानी आता है। तो ये जो फिश फीड है, ये फिश खाता है और उसको ऑक्सीजन भी मिल जाता है, तो फिश इज ग्रोइंग। तो फिश खाना भी खाता है और वेस्ट भी निकालता है, जैसे कि हम लोग जाते हैं यूरिन पास करते हैं, वेस्ट निकालते हैं, ऐसा फिश भी करता है। सो फ्रॉम दिस फिश टैंक द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कमिंग टू दिस इज क्लैरिफायर। What is the work of clarifier? हाँ, मैं बता रही हूँ। सो ये जो क्लैरिफायर है, एक्चुअली क्लैरिफायर में ऑल दीज वेस्ट मैटर्स आर कमिंग। तो दिस वेस्ट मैटर इट कंटेन्स ammonia. So this waste matters, it will settle down in this clarifier and ammonia, ये पानी में ammonia gas जो dissolves in this water and clarifier mainly इसमें sludge आता है. All these waste materials it is coming here, right? Then it will coming down and this water from the clarifier it is going to this biofilter. Ma'am, what is the use of biofilter? हाँ, बायोफिल्टर लिखा है, यू आर ऑब्जर्विंग दिस बायोफिल्टर। तो बायोफिल्टर में एक्चुअली जो पानी जा रहा है, इस पानी में क्या है? एमोनिया है।
इधर से जो पानी जा रहा है उसमें अमोनिया है. सो दिस अमोनिया को बायोफिल्टर में वी आर चेंजिंग इट टू अदर फॉर्म्स. सो इन दिस बायोफिल्टर वी आर देयर इज वन लिक्विड. इस लिक्विड लाए हैं, इसमें 10 ml पर 100 लीटर वाटर. 100 लीटर में इसमें से 10 ml डालना है. एंड दिस कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इसमें है. सो दिस बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टीरिया 2 टाइप्स बैक्टीरिया है. सो दिस बैक्टीरिया हम इसमें लिक्विड डाल देते हैं. सो दिस बैक्टीरिया दे ग्रो. इसमें देखो, इसमें कैसे ऑक्सीजन आ रहा है. देखो इसमें भी हम ऑक्सीजन देते हैं. देख रहे हो बबलिंग हो रहा है कि नहीं, पानी आ रहा है, एयर बबल्स आ रहा है. सो दिस इज ऑक्सीजन. वी आर सप्लाइंग ऑक्सीजन इन दिस वन Why you are supplying oxygen? बिकॉज दे विल ग्रो, दे विल रेस्पायर. तो हम जैसा कि ग्रोथ करने के लिए हमें ऑक्सीजन का जरूरत है, बैक्टीरियाज को भी तो ऐसा जरूरत है. सो बैक्टीरियाज बाय टेकिंग ऑक्सीजन दे विल मल्टीप्लाई इन नंबर. दिस बैक्टीरियाज विल मल्टीप्लाई इन नंबर. एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग, ये देखो ये है, दीज आर कॉल्ड बायो नगेट्स. दीज आर कॉल्ड बायो नगेट्स. देख रहे हो इस, हाँ बोलो. मैम इसमें तो मैम बैक्टीरिया है, फिर मैम ये कैसे मैम फॉर्म हुए? नहीं, ये हम डाले हैं. दिस बायो नगेट्स, दीज आर द प्लास्टिक थिंग्स यू सी. ये प्लास्टिक का ये बायो नगेट्स है ना, ये पानी में ऐसा फ्लोट करता है. तो बैक्टीरिया जिसमें स्टिक कर जाते हैं. जो बैक्टीरिया पानी में होते हैं वो इसमें लग जाते हैं, स्टिक करते हैं. तो स्टिक करके क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रो करते हैं. जैसे कि छोटा चीज़ देखो, पौधा को रखने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए. आइदर तुम मिट्टी में डालो, वी वांट क्ले और स्टोन, कोई भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए. ऐसा इस बैक्टीरिया को एक सपोर्ट सिस्टम देता है, दिस बायोनगेट्स. एंड दिस बैक्टीरिया दे ग्रो वेरी क्विकली. तो ये जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर चेंजिंग दिस अमोनिया. ये पानी में जो अमोनिया है, दिस अमोनिया इज चेंजिंग टू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट. 8th क्लास बुक में है ना नाइट्रोजन साइकिल, है ना, नाइट्रोजन साइकिल पढ़े हो. सो हाउ दिस इज कन्वर्टिंग. यस मैम जो अगर इन पौधों में मैं मिट्टी नहीं डाली तो फिर मैम ये ग्रो कैसे? हाँ, अभी मैं बताती हूँ ये चीज़. तो इसमें से पानी जब नाइट्रेट हो गया, कन्वर्ट हो गया, देन दैट नाइट्रेट इज कमिंग, ये पानी में डिजल्व होकर ये पाइप में आता है. समझ में आ गया. तो ये पाइप में देखो, ये पाइप में आके यू सी दिस वाटर, इधर देखो आगे, ये देखो ये पानी आ रहा है ना, इसमें पानी आ रहा है. यस. तो ये इसमें क्या है, पानी में नाइट्रेट है. तो नाइट्रेट वाला पानी आ रहा है. तो नाइट्रेट इज हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. ठीक है. तो इसमें इसको नाइट्रेट और पानी दोनों मिला है. देख रहे हो इसी, हाँ ये स्टोन्स, क्योंकि ये पूरा सिस्टम सॉइललेस है. वी हैव नॉट यूज्ड एनी सॉइल हियर. मिट्टी तुम देख रहे हो, नहीं मिट्टी है. तो ये देखो कितना बड़े बड़े बीन्स हुआ है. हमने बहुत सारे बीन्स भी खाए इसमें. तो ये जो सॉइल नहीं होते, हमने ये स्टोन्स डाले हैं. दीज आर द स्टोन्स. ये स्टोन्स एक तो ये पकड़ के रखता है प्लांट को, और ये स्टोन के बीच में क्या होता है कि एयर होता है. स्टोन के बीच में स्पेस होता है, क्लियर. तो स्पेस होने से क्या होता है कि एयर इसमें आता है. सो इट इज गेटिंग एयर, it is getting sunlight, and also it is getting water. So that's why it is growing. There is no soil, right? तो ये एक इस टाइप का बेड को बोलते हैं मीडिया बेड. क्या बोलते हैं? मीडिया बेड, जिसमें कि हम स्टोन्स डालते हैं. इसको ये मीडिया बेड होता है. ठीक है. कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी बैक्टीरियाज आते हैं. और देखो ये बीच में देखो कैसा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन कलर का हो गया ना. तो पानी आता है तो धीरे धीरे पानी में भी जो आएगा बैक्टीरिया होता है. तो दैट इज़ वेरी गुड. और ये पूरा इसमें मीडिया बेड हो गया. ठीक है. ये वाला कौन सा बेड लिखा गया है? व्हाट इज दिस वन?
ये दोनों आगे क्या लिखा है? यस, आगे लिखा है फ्लोटिंग बेड। तो ये देखो इसमें हमने कितने सारे चीज़ लगाए, इसमें भी पानी आ रहा है। वाटर इज कमिंग हियर एंड ऑल्सो टू दिस प्लेस। हाँ, मैम ये दोनों साइड में सेम ही होता है। सेम वाटर, यस, एवरीथिंग देयर द सेम वाटर। ये देखो ये जो पानी जा रहा है ना, ये पानी में देखो अलग अलग आउटलेट है, देख रहे हो ना? तो यही सेम पानी आ रहा है, कुछ इधर आ रहा है, अगेन इट इज गोइंग टू दिस साइड, तो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। सो दिस इज गो टू दैट साइड। चलो ये देखो, ये जो है, ये देखो ये है थर्मोकोल पीस। उठाओ इसको। ओ ये रुको 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 रुको। मैडम थोड़ा पकड़िए। यस, यू सी दिस वन, ये देख रहे हो? दिस इज थर्मोकोल, है ना? इन दिस थर्मोकोल वी हैव मेड राउंड्स, इसको कट कर दिए हैं एंड यू सी पूरा इसमें कैसा आ रखा है, बहुत अच्छा है ना? हाँ, तो थर्मोकोल में पूरी सीरीज को कवर करता है तो पानी आ जाएगा। पानी में ये होल्स है ना, ये जो होल्स है इसमें जो रूट्स गया है, तो ये रूट में रूट उसको ऑब्जर्व करेगा पानी को, तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग बेड, क्योंकि पानी में फ्लोट करता है। हमारे पास छोटे जगह है इसलिए हम इसको थोड़ा सा टाइट करते हैं, बट ये फ्लोट करता है। हम जब मान लो कि एक इसमें से थर्मोकोल निकाल देंगे तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा ना? यस मैम। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग बेड। ठीक है, तो फ्लोटिंग बेड में हम ऐसा होल्स करते हैं, ऐसा होल्स किया है, होल के अंदर में देखो पानी है, देख रहे हो? एंड दिस इज द प्लांट। ये सब क्या प्लांट है? ये सब लेट्यूस लगाए हमने, कितना सुंदर देखो लेट्यूस हुआ है। लेट्यूस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, यू कैन पुट इट इन द सैलड। ये स्टोन्स है, ये जो स्टोन्स को इसको बोलते हैं क्ले स्टोन, नहीं तो हाइड्रोटोन बोलते हैं, इसका नाम है हाइड्रोटोन। हाँ, उसको हाइड्रोटोन भी बोलते हैं। बट कैन यू सी द डिफरेंस? ये देखो, ये जो हाइड्रोटोन है, तुम इसको एक एक करके पकड़ के ओजन लो, इसका वेट करो, तो टेक द वेट। वेरी वाइट। कैसा लग रहा है? ये जो है ये इतना हल्का इसीलिए है क्योंकि इसको बनाया जाता है, ये तैयार किया जाता है। नहीं नहीं, ये नेचुरल नहीं है। इसमें जो छोटे छोटे जो मिट्टी का, नहीं मिट्टी का ना क्ले पॉट्स जैसा बनता है ना, घड़े मटके से बनाते हैं ना, तो ऐसे कि एक क्ले को लेकर उसको गोला करते हैं, गोला करके उसमें छोटे छोटे होल्स करते हैं, जैसे कि स्टिक में किसमें होल कर दिए। होल करने के बाद इसको क्या करते हैं? भाटी में पकाते हैं, जैसे कि ईंट बनता है ना, बड़े बड़े भाटी में पकाते हैं, इसको ऐसा पकाते हैं। इसको पकाने से इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर निकल जाता है और ये हल्का हो जाता है। विद इन हाई टेम्परेचर एयर पॉकेट्स बन जाता है। तो दैट्स वाई इट इज़ दिस इज कॉल्ड क्ले स्टोन। इसको हाइड्रोटोन भी बोलते हैं। इसको हाइड्रोटोन, हाइड्रो मीन्स वाटर। कहाँ गिरा? हाँ, तो हाइड्रो मीन्स, हाइड्रोटोन में क्या होता है? इसको हम जब डालते हैं, इसके प्रॉपर्टी है कि इट विल होल्ड वाटर, ये पानी को होल्ड करने का इसका है। एंड ऑल्सो इसमें हल्का है, लाइट है, बहुत लाइट है, और इसमें जो छोटे छोटे होल्स है इसमें बैक्टीरियाज भी रह सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। और ये वाला है प्लास्टिक कप्स, ये प्लास्टिक कप्स है, तो प्लास्टिक कप्स है और इसमें हम ऐसा ग्रो करते हैं। वाटर इज गोइंग डाउन, सो फ्रॉम दैट वाटर इट इज टेकिंग नाइट्रेट, it is getting. One more thing I'll show you, that two things you bring, those two things. Yeah, these are things actually हम इसमें यूज करते हैं। ये जो मैंने ट्रे रखा है, ये ट्रे दिखाने के लिए रखे हैं कि कैसा हम इसको पहले ग्रो करते हैं। ये जो ट्रे में छोटे छोटे पॉकेट्स जैसा होते हैं, तो इन दैट वन वी आर गिविंग दिस कोकोपीट। ये कोकोनट फाइबर से बनता है, जो हमने कोकोनट का जो छिलका होता है ना, कोकोनट फाइबर, तो ये कोकोपीट बनता है। सो दिस कोकोपीट वी आर गिविंग हियर, और कोकोपीट का साथ ये पेरलाइट देते हैं। दिस इज पेरलाइट,
What is the use of perlite? ये पेरलाइट देख रहे हो व्हाइट वाला, Yes, ma'am. Yes, दिस इज ma'am. पेरलाइट। तो इस पेरलाइट को हम इसके साथ मिलाते हैं, मिला के दिस टू थिंग्स एक्चुअली वी आर गिविंग, राइट। ये पेरलाइट एंड दैट वन। हाँ, क्या पूछ रहे थे? ये पेरलाइट क्या पूछे? Use of perlite. हाँ, पेरलाइट का जो यूज है, एक्चुअली जो पेरलाइट है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए रॉक। वॉल्केनिक रॉक पढ़े हो ना, वॉल्केनिक इरा के टाइम में, सो दैट रॉक इज फॉर्म वॉल्केनिक रॉक। तो वॉल्केनिक रॉक जो होता है, दैट वॉल्केनिक रॉक दे आर ब्रेकिंग, दे आर ब्रिंगिंग द पीसेस, और इसको बहुत हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं, छोटे छोटे पीस करके उसको हीट करते हैं। हीट जब करते हैं तो वो क्या होता है कि फूल जाता है। कैसा फूलता है? जैसे कि तुम लोग वो खाए हो ना, क्या होता है कि पॉपकॉर्न खाते हो। नहीं, पॉपकॉर्न देखियो, छोटे छोटे होता है, उसको पॉप करता है, और जब एक बार पॉप करता है वो ऐसा हल्का हो जाता है। कितना हल्का हो जाता है वो पॉप करने के बाद? लाइट होता है और बड़ा भी हो जाता है। सो इट इज द सेम टाइप। ये रॉक को छोटे छोटे पीस करके इसको भाटी में क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर में गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है कि वो पॉपअप करता है और हल्का भी हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड पेरलाइट। और ये क्या करता है कि इसके प्लस पॉइंट है कि इट होल्ड्स वाटर। इसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत है, मतलब पानी इसमें चला जाएगा, एक एक दाना 8-10 गुना हो जाएगा साइज में, फूल जाएगा। इट एब्जॉर्ब्स द वाटर, राइट, इट एब्जॉर्ब्स द वाटर। सो दिस, यस मैम, इन दोनों में से कोई भी मैम ह्यूमन के लिए मैम नो, नहीं, कुछ नहीं करता। ह्यूमंस के लिए कुछ नुकसान नहीं करता है। इट इज़ मेनली, इसमें सैंड सिलिका परसेंटेज ज़्यादा होता है, एंड इट इज़ वेरी गुड। मेनली वी आर यूजिंग फॉर दिस ट्रे में जो no, it is from volcanic rocks. These are prepared from the volcanic rocks mainly. तो ये दोनों में हमने लगा दिए, एंड व्हेन दिस इज ग्रोइंग, थोड़े से हल्के से पानी दे, जब ये ग्रो करते हैं फिर इसको निकाल के वी आर पुटिंग इन दिस कप। ये कप में वी आर गिविंग ऑल दिस हाइड्रोटोन्स एंड वी आर पुटिंग दैट वन। इज इट क्लियर? तो इसमें डाल दिए। मैम, हाँ, मैम जैसे मैम ये वाइट वाला मैम बनता है, तो मैम वो वॉल्केनिक रॉक्स को पहले वो गलत भी होते हैं वॉल्केनिक। वो ठंडा जब हो जाता है फिर उसको निकाल के लाते हैं ना, ब्लास्टिंग करके छोटे छोटे करके रॉक्स लेकर आते हैं। समझ आ गया? हाँ, ये जो आता है, ये जो है ना, इट इज़ मेनली दिस, ये देखो इसमें गोंद जैसा है, चिपकता है हाथ में, देखो, है ना? हाँ, तो इसको जैसे कि फ्लाइज, इंसेक्ट्स छोटे छोटे आते हैं ना अंदर में, मच्छर हो गया, ये सब इसमें चिपक जाते हैं। हाँ, कीड़े दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे कीड़े, तो ये सब इसमें चिपक जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई वर। तो ये जब ख़त्म हो जाता है फिर अगेन वी आर पुटिंग द अनदर वन। तो इसमें से क्या होता है कि अंदर में कीड़े नहीं रहते हैं, वो इसमें चिपक जाते हैं। इसके अंदर चिपक जाते हैं? नहीं, इसमें बाहर में, जैसे कि हमारा हाथ चिपक रहा है ऐसे। इसमें कुछ नहीं, ये पेपर का ऐसे बना रखा है, उसमें गोंद जैसा लगा, वेरी सिंपल। तो ये स्टिक करते हैं। तो ये पानी में ग्रो कर लिया, ग्रो करने के बाद क्या होता है कि दे आर कंज्यूमिंग ऑल द नाइट्रेट्स, सब नाइट्रेट्स इन्होंने कंज्यूम कर लिए, ऑल द नाइट्रेट्स। हाँ, मैम जो मैम ब्राउन वाला मिक्सचर है मैम वो कैसे बनता है? ये कोकोपीट है, कोकोनट का जो फाइबर है ना, उसको छोटे छोटे करके काट के पाउडर करके उसको बनाते हैं। तो ये होने के बाद देन इट इज़ कमिंग थ्रू दिस पाइप। नाइट्रेट ले गया तो नाउ द वाटर इज विदाउट नाइट्रेट, खाली पानी हो गया, ठीक है। तो इसमें से पानी आता है, फिर उधर से सभी जगह में वाटर कलेक्शन होता है। तो यू सी, ये अनदर टाइप के है, दिस इज कॉल्ड डच बकेट। ये जो है ना, ये डच बकेट है। हमने 3 टाइप का चीज़ लगाया, उधर देखा तुमने, एक मीडिया बेड हो गया, एक ये फ्लोटिंग बेड हो गया, और दिस इज कॉल्ड द डच बकेट। हाँ, ये देखो इसमें पानी आता है। हाँ, स्टोन्स हुई, इट विल होल्ड द प्लांट, हल्का रहेगा। इसके बीच में टमाटर, ये देखो लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ग्रीन दिख रहा है, कितने सारे टमाटर लगा हुआ है। तो ये जो है
इसको बोलते हैं डच बकेट। इसमें देखो ये पाइप देखो लगा हुआ है, ठीक है। Yes, sir. ये इसमें से मैम इसको इसको सपोर्ट सिस्टम का, यस। तो ये इसमें पानी आ रहा है, देखो कितने कम कम पानी आ रहा है, देख रहा यस मैम कितने कम कम पानी। और इसमें देखो रूट्स भी दिखता है, यू सी दिस वन, टमाटर का रूट देखो कितना रूट्स दिखता है, यू सी द रूट्स। Ma'am, why can't we grow tomatoes in floating bed? नहीं, फ्लोटिंग में तो बिकॉज इट इज ग्रोइंग वेरी बिग ना, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट ग्रोइंग इन दैट वन। तो इसमें करेंगे, बट सिस्टम इज सेम, सिस्टम में कोई ये नहीं है। यू कैन ऑल्सो ग्रो इन द मीडिया बेड, मीडिया बेड में ऐसा बड़े बड़े चीज़ थोड़ा ग्रो हो सकता है। तो इसमें हम लोग डाल दिए, अगेन यू सी सो बिग टमाटर, कितने सारे, ये पूरा फूल है, पूरा बन जाएगा टमाटर। यस मैम Lots of tomatoes. You see the tomatoes. It is so nicely it is coming. है कि नहीं? तो ये टमाटोज लेने के बाद नाइट्रेट कंज्यूम कर लिया, देन अगेन दैट वाटर इज कमिंग। ये सभी का पानी आ गया, साफ पानी विदाउट नाइट्रेट। And they are going in some. हाँ, ये सब पानी हम जब कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके ये पानी कहाँ जाता है? वो नीचे जाता है, नीचे जो सम्प बताया था ना, इट इज गोइंग टू सम्प। तो सम्प में चला गया, देन अगेन फ्रॉम द सम्प इट इज कमिंग टू फिश टैंक। तो इन दिस कंप्लीट प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग? इन दिस कंप्लीट प्रोसेस देयर इज नो वेस्ट ऑफ वाटर, नो सॉइल। कोई तुमको सॉइल नजर आया? सो इन दिस इज एक्वापोनिक में हम क्या क्या ग्रो करते हैं? Fishes and क्या क्या ग्रो करते हैं? फिशेस एंड प्लांट्स। अच्छा, ये क्या चीज बताया तुमको? इसको कोकोपीट बताया। ये क्या चीज बताया? पेरलाइट, वेरी गुड, ये पेरलाइट बताया। इसको क्या बताया? व्हाट आर दी स्टोन्स? मैम क्ले स्टोन हाँ, क्ले स्टोन या हाइड्रोटोन, है ना। तो इसमें वी आर नॉट यूजिंग एनी सॉयल एंड एट द सेम टाइम वी आर ग्रोइंग द फिश एंड ऑल्सो द ग्रीन वेजिटेबल्स। इधर देखो धनिया, पुदीना, पालक, हाँ, लेट्यूस, इसको हम सलाद में डाल के यू कैन यूज इन द सलाद ऑल्सो, है ना। बहुत अच्छा है सलाद, हाँ यस। इसको सलाद में इसको खाली धो के इसको ऐसे ही खाते हैं, बता। Yes, so it is very good, and there is no chemicals we are giving, no insecticides, no pesticides, no chemicals. So these are called organic vegetables. ये terms what will सुने होंगे। happen if we don't give these bacteria to the diet? Those bacteria. तो नहीं, इफ यू नॉट गिव तो फिर उसको न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा? प्लांट का ग्रोथ के लिए नाइट्रेट चाहिए। सो हाउ दिस अमोनिया विल बी कन्वर्टेड टू नाइट्रेट? Those bacteria convert. Yes, those bacteria they convert the ammonia into nitrate एक बार में, क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन को इट कैन टेक ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। तुम जब ऐसे नाइट्रोजन दोगे प्लांट नहीं लेगा, प्लांट कोई भी फॉर्म में नहीं लेता, नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। तो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी वांट दिस टू बैक्टीरियाज, दे कन्वर्ट इट। पहले अमोनिया नाइट्रेट बनता है, देन नाइट्रेट बनता है, देन दैट नाइट्रेट डिजॉल्व इन द वाटर एंड इट ड्रॉप्स, ठीक है ना। सो आई थिंक दैट हाउ डिड यू लाइक दिस वन? मैम वेरी तो इट इज़ अ वेरी गुड। और ये चीज़ का एक अच्छी बात है कि इट इज़ अ वेरी स्मॉल वन, and in your school also you can make it a project, you can make it a small model, you can make it a project in your school, है ना। स्कूल में, so in the school you can grow fish, you can grow lots of lettuce and this green vegetables grow कर सकते हो, पुदीना, धनिया, पालक, these are very good। पालक में क्या है? पालक contains lots of vitamins, nutrients, it is very good for your eyes, lots of iron, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें साफ सुथरा चीज़ मिलेगा सभी को। सो दिस इज द प्रोजेक्ट मेनली फॉर यू। और मुझे लग रहा है कि तुम लोग जाके बनाओगे इसको, हाँ। ये छोटे वाला तुम्हारा सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन में मॉडल्स भी बनता है, तो यू कैन मेक दिस वन एंड ऑल्सो एट द होम, और गांव में जैसे कि जाते हैं तो यू कैन मेक दिस वन एंड एट द सेम टाइम यू कैन गेट
फिश, और फिश हमने छोटे छोटे रखे थे और थोड़े से बड़े बड़े हो गए फिश। इसी के चक्कर में तो वो फिश देखना है? ओके, मैं दिखा दूँगी। तो फिश कोई इसमें कोई फिश दिखा देंगे तो अच्छी बात है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव कम एंड वी हैव डन इट इन अ वेरी नाइस वे। सब समझ में आया? अच्छा लगा तुमको? तो फिश दिखाओ। सच्ची बिग वन। ओ मछली कैसे कर रही है? पानी। दिखाओ। It has become very big. इसमें से पता चलता है कि इसको खाना वाना सब बढ़िया मिलता है। मिल रहा है। हाँ। अरे दूर ऊपर हो। उठा बेटा, ऊपर। अरे मुझे हाँ, अरे मुझे कोई इसको रख दो। हाँ, मर जाएगा। मैंने तो देखा ही नहीं। तू देख लिए? छोटा वाला है बेटा, छोटा है। इसको तो बस तो सो यू हैव सीन कि हमने इतना छोटा वाला रखे थे, हाउ इट हैज बिकम सो बिग। इट्स अ वेरी बिग फिश, है ना? सो इट इज टेकिंग दैट वाटर, इसको सब कुछ मिलता है। सो ये जो है, तो इसमें जो छोटे छोटे चीज़ है उसको हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है करेंगे, उसमें हम दिखाएंगे कि हाउ टू मेंटेन द pH ऑफ वाटर। क्योंकि पानी उसमें एक इम्पोर्टेंट थिंग है, ये जो पानी में जो फिश रहता है ना, तो फिश एसिड वाला पानी या अल्कलाइन वाला पानी में नहीं रह सकता है। बस तो अभी pH ऑफ वाटर जब कम होगा इट विल बिकम एसिडिक। pH ऑफ वाटर जब ज़्यादा होगा, यू मस्ट हैव नोन दैट वन ना, इट इज इन क्लास 10th, है ना? 10th में है, दैट इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन pH ऑफ वाटर। तो इसमें पानी लेके हमें टेस्ट करना पड़ता है। तो पानी का pH 7 होना चाहिए, 6.8 to 7। उसमें क्या होगा कि फिश अच्छा रहेगा। जब ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए pH, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। उसके अंदर हम एक ही जगह पे क्यों नहीं दे सकते? वो इसे घूम रहे हैं ना, इसमें पानी बांध रहा है ना, सो दैट्स व्हाई इट इज मूविंग। दे विल मूव। हम जब ये पाइप को दूसरे जगह में कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली दे विल कम टू दिस साइड, देयर इज नो प्रॉब्लम, दे आर मूविंग। यू सी, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तुम लोगों को अच्छा लगा? यस मैम। चलो, अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। बच्चों को बहुत, इन लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। स्कूल में जाके इसको जरूर बताएंगे। बिग क्लैप फॉर दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच। तो तुम लोग जाके स्कूल में बताओगे ना? यस स्कूल में बताना। और इसका एक छोटा, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट होता है ना, हमारे केबी में भी होता है प्रोजेक्ट, आता है कि नहीं? तो इन द प्रोजेक्ट ऑल्सो यू कैन मेक इट एज ए प्रोजेक्ट। इट इज ए न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वेयर वी आर गेटिंग टू थिंग्स टुगेदर। इसमें कोई सॉइललेस है, इसमें कोई केमिकल्स, कोई इंसेक्टिसाइड, कोई पेस्टिसाइड कुछ लगता नहीं है ना? तो इसको हम कर सकते हैं। इवन इफ हम इसको छोटे स्केल में अपने का ड्राइंग रूम में भी करके रख सकते हैं, अपने के इसमें टेरेस में भी। स्कूल में तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। स्कूल में जो तुम्हारा नेचर क्लब, एडवेंचर क्लब सब है ना, है कि नहीं है स्कूल में? Yes, ma'am. Yes, in that one also you can make this project and you can keep. Okay, thank you to all of you.